हेलो दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हाउ टू अपलोड थेसिस एट शोधगंगा। सो इस वीडियो में आई विल डिस्कस एवरी aspect related to Sodhganga, and also I tell you procedure to upload the thesis at Sodhganga step by step. So you can easily understand what procedure you have to adopt to upload thesis at Sodhganga. Okay, so main points से पहले let me tell you something about Sodhganga. So basically Sodhganga Center provides a platform for research students to deposit their PhD thesis and make it available to the entire scholarly community in open access. तो बेसिकली शोधगंगा एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट स्टूडेंट के थेसिस को अपलोड कर सकती है। उसके बाद अगर कोई भी बच्चा हुआ या कोई भी स्टूडेंट अगर उन थेसिस को एसेस करना चाहता है तो वो एसेस कर सकते हैं, बिकॉज ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी थेसिस अपलोड की जाती है, कोई भी स्टूडेंट वहाँ से एसेस कर सकता है। तो करंट सिनारियो क्या है कि जैसे आप इनफ्लिब्लिनेट की साइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप उनका एक ओवरव्यू देख सकते हैं। जो फर्स्ट पेज पे उन्होंने ओवरव्यू दिखाया है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट 4,30,000 के आसपास थेसिस ऑलरेडी अपलोडेड है, 10,000 के आसपास सिनॉप्सिस अपलोडेड है, एंड फेलोशिप रिपोर्ट नियर अबाउट 61 अपलोडेड है, और नियर अबाउट 680 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग टू अपलोडिंग द PhD thesis, and they have signed up near about 780 MOU with institute and university. So and just let me tell you something about Sodhganga. Basically Sodhganga is a project which is designed by Influminet, and this is an organization which is situated in Gandhinagar, Gujarat. When you visit in this organization, you find they are working on near about 40 to 50 projects which are directly indirectly related to education, because they are getting fund from the Indian government. Basically this is a government company, you can say, and also they are getting fund from the Ministry of Education. So they are developing various e-resources to help students, to help the people who belong to education industry, and they are doing very tremendous job, because they are working on you know learning management system. They are also working on Sodhganga. They are Sutri also swam developed by them, and there are various project and resources they have already developed. So in this video basically I will focus on Sodhganga only. So just start our video to understand. Now this is basically overview. इनके साइट पे आप जैसे ओपन करते हैं then you will find a graph. So by visualizing this graph you can understand कि how they are working. So यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा बीच वाला ग्राफ है, within 1 year they have uploaded near about 50,000 theses, and by month you can see. So in Feb 2020 they have uploaded near about 7,000 theses, and that is really great number. So अब बात करते हैं कि बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम शोधगंगा की बात करें, अगर यू आर इंटरेस्टेड टू अपलोड अपलोडिंग थेसिस ऑन द शोधगंगा, तो बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है देयर शुड बी ये MOU बिटवीन योर इंस्टीट्यूट एंड योर यूनिवर्सिटी, सॉरी there should be MOU between Influminet and your organization. Okay, your organization can be university or institute and college something. Okay, तो पहले तो एक MOU साइन होना पड़ेगा, then you can proceed. Second है Adobe Reader version 6 और above. अगर ये नहीं है तब भी काम चलेगा, बिकॉज ये इसलिए चाहिए कि हमें जब भी हम अपलोड इसमें करने जाते हैं तो हमें PDF को स्प्लिट करना पड़ता है वेरियस पार्ट में, उसके लिए चाहिए। अदरवाइज ऑनलाइन बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं या सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ किया था आई लव PDF, उसके थ्रू भी आप अपने PDF को वेरियस पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास एडोबी रीडर वर्जन या इससे ज़्यादा है तो मच बेटर है, बिकॉज दिस इज़ वेरी जेन्युइन सॉफ्टवेयर, दैट्स वाई। अदरवाइज दे आर वेरियस सॉफ्टवेयर अवेलेबल
फॉर डूइंग दिस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया आई लव पीडीएफ साइट है, वहाँ से भी ऑनलाइन आप चाहें तो अपने पीडीएफ को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे डू पीडीएफ, देयर इज आल्सो सॉफ्टवेयर पीडीएफ एंड आल्सो निट्रो पीडीएफ, तो दे आर मल्टीपल। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। अगर आप जेन्युइनली तरीके से करना चाहते हैं देन यू कैन टेक लाइसेंस फ्रॉम एडोबी एक्रोबैट रीडर, अदरवाइज आप आई लव पीडीएफ कर सकते हैं, डू पीडीएफ, नेटो पीडीएफ, इन सारे के पास फंक्शनलिटी है कि वो आपकी पीडीएफ को स्प्लिट कर सकते हैं। तो मेरा अगर प्रीफर की बात करेंगे तो फर्स्ट मैं प्रीफर करूँगा एडोबी रीडर, अदरवाइज आई लव पीडीएफ। तो ये दो चीज़ें जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जैसे आपका एमआईयू हो चुका है देन फर्स्ट एमओयू होने के बाद बताते हैं प्रोसीजर क्या है। लेकिन उसके पहले बेसिकली अपलोड करने का प्रोसीजर क्या है। पहला है थेसिस स्प्लिटिंग चैप्टर वाइज। तो पहले तो आपका थेसिस चैप्टर वाइज स्प्लिट होना चाहिए। फिर सेकेंड स्टेप है क्रिएशन ऑफ मेटा डेटा। थर्ड स्टेप है अपलोडिंग ऑफ स्प्लिट चैप्टर, देन मर्जिंग अप्रूवल ऑफ अपलोडेड फर्स्ट थेसिस फ्रॉम शोधगंगा टीम। सो देखिए ये 4 स्टेप में काम होता है। फर्स्ट स्टेप है कि जो भी थेसिस है उसको अप्रूवल होगा। जो अप्रूवल होगा आपको इन्फ्लीबिनेट सेंटर से मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप है उस पीडीएफ को स्प्लिट करना, देन मेटा डाटा क्रिएट करना, देन अपलोड करना, देन वेट फॉर अप्रूवल फ्रॉम शोधगंगा की। जैसे ही आपका फर्स्ट थेसिस का अप्रूवल मिल जाता है, मतलब काम कर जाता है, उसके बाद आप अपनी सारी थेसिस अपलोड कर सकते हैं। मीन्स इसमें मेन चीज़ है फर्स्ट थेसिस अपलोड होना। मीन्स जैसे ही आपका फर्स्ट थेसिस अपलोड करते हैं वो आपको अप्रूव करेंगे। जैसे अप्रूवल मिलता है उसके बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद आप थीसिस अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है। सो बिफोर अपलोडिंग द थीसिस ऑन द शोधगंगा सम वर्क्स नीड टू बी डू। First is split the thesis into various groups as per their instruction and format. So for splitting the PDF in various parts, Adobe software is required. By using other software also it can be done, but Adobe Reader or more is preferable. जैसे कि मैंने बोला कि अगर Adobe Reader है आपके पास अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं या कोई भी साइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आई लव PDF हुआ, डू PDF हुआ, नेटो PDF हुआ। And store the parts of PDF and rename as per their instruction, prepare metadata and upload thesis। तो अब बात करते हैं स्प्लिटिंग का। तो जो भी आपका थेसिस है उसको स्प्लिट कैसे करना है। पहले तो फाइल नेम कैसे होना चाहिए। फाइल नेम स्टार्ट होगी 01, 02, 03 अंडरस्कोर। जो फर्स्ट आपका स्प्लिट बनेगा वो बनेगा टाइटल का। जो भी आपका थेसिस उसका जो टाइटल है वो फर्स्ट आपका स्प्लिट हो गया, दैट विल बी मेंशन एज ए 01 अंडरस्कोर टाइटल। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड है आपका, यहाँ हो गया टाइटल। सेकेंड है प्रीलिम पेजेस। इसमें क्या आएगा, टाइटल प्लस डिक्लेरेशन प्लस डेडिकेशन प्लस सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, लिस्ट ऑफ टेबल एंड ग्राफ। ओके, अगर आपने टाइटल यहाँ पे ले लिया है, अगर यहाँ पे इसको हटा भी देते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट होगा टाइटल 01, सेकेंड इज प्रीलिम पेजेस, डिक्लेरेशन, डेडिकेशन, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट एंड लिस्ट ऑफ टेबल एंड ग्राफ। थर्ड इज टेबल ऑफ कंटेंट एंड फोर्थ इज अब्स्ट्रैक्ट। अगर अब्स्ट्रैक्ट है देन आएगा, अगर अब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, इसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। ओके, उसके बाद
चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, उसके बाद चैप्टर एनेक्चर, उसके बाद 80 रिकमेंडेशन। देखिए तो ये जो है इसका 80 है, हमेशा ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, 0, 1 से लेके इसके बीच में चेंज हो सकता है। मान लीजिए कि आपके चैप्टर 3 हैं तो ये नहीं आएगा, तो उसके बाद क्या होगा 07, उसके बाद 08 आ जाएगा एनेक्चर, उसके बाद 80 आ जाएगा रिकमेंडेशन। मान लीजिए आपके चैप्टर मोर देन 7 हो गए तो यहाँ पे नीचे आप और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, फिर वहाँ पे लिख सकते हैं अंडरस्कोर चैप्टर 8, मतलब इसके बाद 11 के बाद एनेक्चर के पहले। तो फर्स्ट क्या है, टाइटल आपको स्प्लिट करना। मान लीजिए आपकी जो पीडीएफ है, थीसिस है, वो 150 पेज की है। ओके, फर्स्ट पेज आपका टाइटल है, आपने इसको स्प्लिट कर लिया, आपने सेव कर लिया एज टाइटल। उसके बाद डिक्लेरेशन, डेडिकेशन, सर्टिफिकेट, मान लीजिए पेज नंबर 2 से लेके 20 तक है, तो इसको आपने स्प्लिट कर लिया और सेव कर लिया एज टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब इनको मर्ज करके सेव कर लिया एज प्रीलिम पेजेस। वैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट मान लीजिए 2 पेज का है तो 2 पेज को आपने कट किया, स्प्लिट किया, उसको सब के लिया टेबल ऑफ कंटेंट से। एब्स्ट्रैक्ट है तो उसको कर लिया। उसके बाद चैप्टर 1 मान लीजिए पेज नंबर 25 से लेके 50 तक है, तो ये जो 25 पेज हैं उसका आपका चैप्टर 1 हो गया, इसको सेव कर लिया। फिर चैप्टर 2 है 51 से ले मान लीजिए 100 तक, तो ये चैप्टर 2 सेव कर लिया। मीन्स इसमें जो मेन वर्क है वो है आपके पीडीएफ को स्प्लिट करके वेरियस पार्ट में सेव करना। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मीन्स मैंने क्या बोला कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो 04 पे आ जाएगा चैप्टर 1, 05 पे चैप्टर 2। अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो 05 पे चैप्टर 1, चैप्टर 2। मान लीजिए चैप्टर 10 है तो यहाँ पे 12 अंडरस्कोर चैप्टर 8, 13 अंडरस्कोर चैप्टर 9, वैसे ही। फिर लास्ट में आ जाएगा सेकेंड लास्ट, दैट विल बी एनेक्चर, जो कि बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, क्वेश्चनेयर, मैप्स एंड पब्लिकेशन कंटेन करेगा। उसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा वो है रिकमेंडेशन। इसका नॉमेनक्लेचर फिक्स है, दैट विल बी 80 अंडरस्कोर रिकमेंडेशन। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। तो जो आपका मेन काम है ये है, जो फर्स्ट स्टेप था, स्प्लिट द पीडीएफ इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। सेकेंड है प्रिपेयर द मेटा डेटा। देखिए मेटा डेटा इसलिए कि जब भी आप थीसिस अपलोड करने जाएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस इन्फॉर्मेशन को पहले ही सेव करके रख लेना चाहिए ताकि उसके बाद हम कॉपी पेस्ट कर सकें, वहाँ पे हमें बार बार लिखने की ज़रूरत न पड़े। इसलिए हम मेटा डेटा तैयार करते हैं। तो फर्स्ट जो मेटा डेटा है, बेसिकली 7 इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करने। फर्स्ट है टाइटल। आपका टाइटल क्या है, जो भी थीसिस का टाइटल होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा, बाकी लेटर स्मॉल लेटर में, विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल करेक्टर। जैसे कि एग्जांपल आप दे सकते हैं, इवेल्युएशन ऑफ मोशन स्टीरियोटाइप ऑफ बंगाली इंडियन पॉपुलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन इंटरफेस डिजाइन। तो इसमें क्या है कि ये कैप्स है, कुछ ऐसे वर्ड है जैसे सिटी का नाम आ गया तो उसको आप चाहें तो कप्स कर सकते हैं, लेकिन उसको अवॉइड करना चाहिए। कंसेप्ट क्या है कि फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल एंड रिमेनिंग शुड बी इन स्मॉल लेटर। तो पहला तो ये आपको स्टोर करना है किसी एक नोट पैड पे या किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पे, आप इसको सेव कर लीजिए। सेकेंड है रिसर्चर नेम, जो भी स्टूडेंट है उसका नाम, पहले आएगा सर नेम, देन आएगा उसका नेम। जैसे मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है आलोक शर्मा स्टूडेंट का नाम है, लेकिन पहले आएगा शर्मा देन कामा आलोक, और इसमें कोई भी प्रीफिक्स या डेजिग्नेशन मेंशन नहीं किया जाएगा, चाहे डॉक्टर हो चाहे मिस्टर हो, उसमें आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड नेम है। तो जैसे कि रिसर्चर आ गया, उसके बाद थर्ड नेम है गाइड, को गाइड जो भी हैं उनका सेम मैनर में, मीन्स पहले आएगा सर नेम देन नेम, कोई भी डॉक्टर कोई भी प्रीफिक्स यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है पब्लिश्ड ईयर, मीन्स आपको डिग्री किस ईयर में अवार्ड की गई, सो यू हैव टू मेंशन, मीन्स यू हैव टू स्टोर दी दैट पर्टिकुलर डेटा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ रेफरेंसेस। देखिए रेफरेंस थीसिस में लिखने के 2 तरीके होते हैं, कुछ लोग पॉइंट में लिखते हैं, मीन्स बुलेट पॉइंट में, कुछ लोग नंबरिंग में लिखते हैं 1 2 3। ओके, जो नंबरिंग में लिख रहे हैं तो वो बता सकते हैं कि उन्होंने कितने रेफरेंसेस यूज किए हैं। सो सपोज यू हैव यूज 55 रेफरेंसेस, तो यहाँ पे आपको 55 सेव करना है। ओके,
अगर बुलेट में है तो यहाँ पर सीधे आप लिख सकते हैं रेफरेंसेस गिवन। ओके, अभी जब हम आगे मेन पेज ओपन करेंगे या मेन पेज आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मेटा डाटा हम क्यों बना रहे हैं। ओके, रेफरेंसेस। उसके बाद पेज नंबर मीन्स थीसिस में कितने आपके पेजेज हैं। मान लीजिए 200 पेजेज हैं तो 200 p स्मॉल डॉट, सो दैट विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पेजेज। उसके बाद इन केस ऑफ अब्स्ट्रैक्ट, अगर आपके पास अब्स्ट्रैक्ट है थीसिस में देन यू हैव टू मेंशन अवेलेबल, अगर अब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो नॉट अवेलेबल। ये हमारा मेटा डेटा है। तो जब हम एक्चुअल फॉर्म ओपन करेंगे तो वहाँ पे इन इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप लॉगिन करते हैं तो सिर्फ आपको 10 मिनट्स मिलते हैं एक थीसिस को अपलोड करने में। ओके, अगर ये डाटा आपने ऑलरेडी प्रिपेयर बनाया हुआ है तो इजीली आप कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया है तो मे भी हो सकता है कि आपकी थीसिस अपलोड ही ना हो। रीजन क्या है कि आपका सिस्टम लॉग आउट हो जाएगा, फिर आप लॉगिन करोगे। तो इससे बढ़िया है कि सबसे पहले आप अपना थीसिस को स्प्लिट कर लीजिए, फिर मेटा डाटा तैयार कर लीजिए, देन अपलोड कीजिए। ओके, अब आगे मेटा डाटा से एग्जांपल बताते हैं। जैसे एक हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया, वहाँ पे सेव कर लिया, फर्स्ट नेम ऑफ रिसर्चर आ गया, जैसे आप देख सकते हैं लास्ट नेम फर्स्ट नेम, नेम ऑफ गाइड धेरा प्रकाश, नेम ऑफ को गाइड है तो ठीक है, कंप्लीटेड ईयर आ गया, टाइटल, अगर नोट्स कुछ मेंशन करना है, साइज आ गया। तो बेसिकली दिस इज मेटा डेटा। ओके, तो जो कुछ पॉइंट जो आपको मेन पॉइंट थे ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कस कर लिया कि इतने मेन पॉइंट चाहिए, और अगर आप और चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। हमारा पीडीएफ स्प्लिट हो गया है, मेटा डेटा प्रिपेयर हो गया है। अब बांटते हैं अपलोड करने के लिए। देखिए, फर्स्ट थीसिस विल बी अपलोडेड बाय InfluBNet टीम itself. You can send the soft copy of thesis by email to them or send thesis in the CD DVD. देखिए, तो जो हमने क्या कहा कि जो फर्स्ट थीसिस होगा वो InfluBNet की टीम ही अपलोड करेगी। ओके, फर्स्ट आपको उनकी मेल आईडी पे अपनी थीसिस भेजनी होगी, उसके बाद वो अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड होगा आपकी यूनिवर्सिटी लाइव हो जाएगी और फिर आपको वो यूजर नेम पासवर्ड देंगे। फिर उस यूजर नेम पासवर्ड को यूज करके आप थीसिस खुद से अपलोड कर सकते हैं। चाहे अपनी यूनिवर्सिटी से अपलोड कीजिए, चाहे इंस्टीट्यूट से चाहिए, चाहे घर से बैठ के कीजिए, आप कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट थीसिस होगी वो उन्हीं के द्वारा अपलोड की जाएगी। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। ये उनकी साइट है। आप जैसे इस ऊपर यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो उनकी साइट ओपन हो जाएगी। ओके, उनकी साइट ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन के अंदर वेरियस ऑप्शन आएंगे, जैसे यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको क्लिक करना है यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर पे। उसके बाद लॉगिन पेज ओपन होगा, ईमेल दीजिए प्रोवाइड और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक नए पेजेज आएगा। यहाँ पे आ जाएगा वेलकम, जो भी यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर होगा उनका नाम लिख के आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है अपलोड थीसिस। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अपलोड थीसिस। जैसे आप अपलोड थीसिस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। सबसे पहले आएगा यूनिवर्सिटी नेम कि किस यूनिवर्सिटी में, उसके बाद डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि जब भी आप यूनिवर्सिटी क्रिएट करते हैं या यूनिवर्सिटी वो लाइव करते हैं उसके साथ डिपार्टमेंट की अब इंफॉर्मेशन देते हैं, देन वो ऐड कर देते हैं। मीन्स फर्स्ट काम वो खुद करते हैं। ओके, उसके बाद जैसे यूजर नेम पासवर्ड मिलता है आप कर सकते हैं। आप खुद से भी डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। ओके, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, नेम ऑफ रिसर्चर। तो हमने जो डेटा तैयार किया था वहीं से हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। नेम ऑफ गाइड कॉपी पेस्ट कर दिया, लिखने के बजाय हमने कॉपी पेस्ट किया था, हमारा क्या हुआ, टाइम बच गया, क्योंकि हमने कहा था कि 10 मिनट का टाइम होता है। टाइप ऑफ डिग्री PhD, रजिस्ट्रेशन ईयर अगर आप है तो दीजिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कंप्लीटेड ईयर आपको देना है क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। ओके, अवार्ड ईयर आफ्टर यस या नो, 2019 के बाद है कि पहले है, तो यहाँ पर आपको मेंशन है। 19 के बाद है तो यस, उसके पहले है तो नो। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये हुआ जो हमने सेव किया था। याद होगा हमने सेव किया था गाइड नेम, रिसर्चर नेम, आल्सो हमने सेव किया था कंप्लीटेड कंप्लीशन ईयर। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा टाइटल, जो हमने सेव किया कॉपी पेस्ट कर देंगे टाइटल। अगर कोई दूसरा टाइटल भी है तो अगर आप यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट टाइप करना चाहें या लिखना चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं। ये रिक्वायर्ड फील्ड
नहीं है। उसके बाद नोट भी आप चाहें तो मेंशन करना चाहें तो कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। कीवर्ड यू कैन सिलेक्ट वेरियस कीवर्ड डिपेंडिंग अपॉन योर थीसिस कि आपके थीसिस का कंटेंट क्या है, फील्ड क्या है, आप कर सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं जैसे कीवर्ड में तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड बेसिकली सर्चिंग टाइम में बहुत यूजफुल होता है। उसके बाद लैंग्वेज, यहाँ पे वेरियस लैंग्वेज है, मतलब 50-60 लैंग्वेज है, तो किस लैंग्वेज में आपकी थीसिस रिटर्न है यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर। उसके बाद यहाँ पे आएगा साइटेंशियल रेफरेंसेस, जो हमने कहा था कि आपने कितने रेफरेंस दिए हैं। सपोज 80 रेफरेंस है तो यहाँ पे आएगा 80, अगर 90 है तो 90, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेफरेंसेस गिवन। ओके, उसके बाद आता है साइज। साइज मीन्स नंबर ऑफ पेजेस कितने, जैसे 144 पी, ये बताएगा कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। ओके, एंड हियर मटेरियल। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, टाइटल अपलोड करना है। जैसे क्लिक किया, टाइटल अपलोड किया, प्रीलिम पेज अपलोड कर लिया, टेबल ऑफ कंटेंट, अब्स्ट्रैक्ट, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, सपोज 5 तक एग्जाम्पल दिया है। आपको और ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड मोर फाइल, चैप्टर क्रिएट हो जाएगा, ऐड मोर फाइल क्रिएट हो जाएगा, ऐड मोर फाइल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको एनएक्सएल अपलोड करना है, देन ऐड रिकमेंडेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी कैप्चा मेंशन है उस कैप्चा को एंटर कीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और फिर अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए। आपकी थीसिस अपलोड हो गई। उसके बाद ये थीसिस जाएगी, जैसे आपने थीसिस अपलोड किया यू विल गेट ए मैसेज यस सक्सेसफुली अपलोडेड। उसके बाद थीसिस आपकी इन्फिनिटी टीम के पास चली जाती है, वो उसको रिव्यू करते हैं, देन आफ्टर सम टाइम इट विल बी लाइव। ओके, तो ये तो प्रोसीजर था थीसिस को अपलोड करने की। अब अपलोड करने के बाद प्रोसीजर क्या होता है कि मान लीजिए आपकी थीसिस अब लाइव हो गई है, अब आप किसी थीसिस को एसेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे इनकी साइट ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रहा है सर्च का ऑप्शन। तो जिस भी यूनिवर्सिटी का देखना चाहते हैं या जिस भी पर्सन का देखना चाहते हैं उसका नेम वहाँ पे एंटर कीजिए और सर्च पे क्लिक कीजिए। जैसे सपोज मैंने अन्ना यूनिवर्सिटी डाला तो अन्ना से रिलेटेड जितने भी थीसिस होंगी वो आ जाएंगी। मे बी वो अन्ना नेम भी हो सकता है, मे बी यूनिवर्सिटी हो सकता है। जैसे मैंने इस पर सर्च क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ये थीसिस आ गई। अब देखिए इस थीसिस आने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब इस थीसिस को ओपन करेंगे तो या तो अन्ना यूनिवर्सिटी का कोई बंदा होगा या तो कोई बंदा होगा जिसका नाम अन्ना होगा। तो इस तरह से वो फाइंड आउट थीसिस करता है। ओके, तो जैसे हमने लिखा कम्युनिटी नेम अन्ना यूनिवर्सिटी, तो जितने भी अन्ना यूनिवर्सिटी के थ्रू थीसिस अपलोडेड होगी वो सब आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अन्ना, इसकी वजह से आ गया। यहाँ भी देख सकते हैं अन्ना, तो ये बेसिकली कीवर्ड है टू फाइंड आउट। ओके, यहाँ भी कहीं ना कहीं मेंशन होगा जैसे ऑल इंडिया अन्ना अन्ना। ओके, तो अब जिस भी थीसिस को आप एसेस करना चाहते हैं उसको क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप ओपन होगा, आप इस पॉपअप को यहाँ भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन जैसे इसके बंद करेंगे तो इसके बैकग्राउंड में सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। उसके बाद चलते हैं, देखिए इसके बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन क्या दिख रही है, जो हमने टाइटल जो भी थीसिस सिलेक्ट किया है उसका टाइटल, रिसर्चर, गाइड का नाम आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं कीवर्ड। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कंप्लीटेड डेट 1982, अब्स्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद यूआरएल भी देख सकते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ तमिल लैंग्वेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। उसके बाद जो भी आप पॉइंट देखना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अटैच फाइल क्या है, एक्नॉलेजमेंट, या इसको व्यू करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे करेंगे ओपन हो जाएगी। उसको चाहे सेव करना तो आप सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट अपलोड है, चैप्टर है, ये तो बहुत पहले अपलोड हुई है इसलिए फॉर्मेट इसका चेंज हो गया। जैसा मैंने बताया वो वैसा करना है। उसका रीज़न क्या है कि मैंने कुछ दिन पहले विजिट किया था तो उन्होंने एक प्रोसीजर बताया, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इसमें इतना ही, और मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि कैसे अपलोड करते हैं। तो दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें अपनी जो भी थीसिस है, जो भी पीडीएफ फॉर्म है, उसको आपको पहले ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा, देन मेटा डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन आपको ओपन करना है, थीसिस को अपलोड करना है सारी इन्फॉर्मेशन देके, एंड सेव करना है। सेव करने के बाद इन्फॉर्मेशन टीम के पास जाएगी, टीम इसको रिव्यू करेगी, देन लाइव हो जाएगी। लाइव होने के बाद यहाँ पे आप सर्च करके अपना थीसिस को एसेस कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।
थैंक यू। अगर कोई भी क्यूरी रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू।